ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرے شوہر نے غصے میں آ کر مجھے طلاق دے دی، لیکن جب ایک امیر آدمی نے میرے لیے رشتہ بھیجا تو شوہر شرمندہ ہو کر معافی مانگنے لگا اور بولا تم واپس مجھ سے شادی کر لو، لیکن اس کے لیے حلالہ کروانا ضروری تھا۔ پر شوہر کو خوف تھا کہ جو بھی مجھ سے شادی کرے گا پھر وہ مجھے طلاق نہیں دے گا، اس لیے ایک دن وہ مجھے حلالے کی خاطر ایسی جگہ لے کر گیا جہاں پر تو صرف طوائفیں۔ وقت اکثر ہمیں انہی لوگوں کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے جن سے ہم ساری زندگی بھاگتے رہتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں جو وقت کسی پہ ہے وہ تم پہ بھی آ سکتا ہے۔ اسی لیے کسی کا برا وقت چل رہا ہو تو مذاق بنا کر اس کا جینا حرام کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہیں میں اس کی جگہ پر نہ آ جاؤں۔ میرا نام انیتا ہے۔ میں اپنے والدین کی ایسی بیٹی تھی جسے زندگی سے سب کچھ میسر رہا، کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ میرے والد ایک مل مالک تھے، والدہ ایک کالج میں لیکچرار۔ میرے بابا نے سب کچھ بہت محنت سے بنایا تھا، وہ سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا نہیں ہوئے تھے، یہ سب کچھ بہت مشکل سے حاصل کیا تھا۔ میرے والد جن کا نام سعید فاروقی ہے بہت غریب گھرانے سے تھے، 5 بہن بھائی جنہیں اپنا بدن ڈھانپنے کے لیے بھی ایک دوسرے کے کپڑوں کی ضرورت پڑتی تھی۔ ابا بتاتے تھے کہ بہن بھائی ایک دوسرے کے کپڑے پہنتے تھے اور گزارا کرتے تھے، جو ہوتا ماں کہتی مل بانٹ کر کھا لو۔ ان کے والدین نے انہیں یہی سکھایا کہ جو ہو اسی میں شکر گزار رہو۔ سعید جیسا بچہ جو فٹ پاتھ پر بیٹھے فقیروں کو دیکھ کے سوچتا تھا کہ اگر مانگنے کو اپنا پیشہ نہ بناتے تو فقیر نہ کہلاتے، یہ لوگ کام کر کے مزدور بھی بن سکتے تھے، کم از کم کسی کے آگے ہاتھ تو نہ پھیلانے پڑتے۔ جو اپنے بھائیوں کے کپڑے مانگ کر پہننے سے بہتر سمجھتا تھا اپنے ہی 2 جوڑوں پر گزارا کرتا، جب دیکھتا ایک پہنا ہے تو دوسرا دھو کر سکھا لیتا، لیکن اسے مانگنا پسند نہیں تھا۔ کسی شادی پر جاتے تو اسے اچھا نہ لگتا کہ محلے سے کسی کا جوتا 1-2 دن مانگ کر شادی دیکھ لی جائے۔ وہ اپنی ماں سے کہتا میں گھر پر رہ لوں گا، آپ لوگ ہو آئیں۔ اس نے گھر کے حالات کے باوجود ہمت نہ ہاری اور اپنی تعلیم جاری رکھی۔ اس کے پاس ٹیوشن کی فیس نہیں تھی، اس کے لیے وہ شام کو ایک سروس اسٹیشن پر گاڑیاں دھوتا اور صاف کرتا۔ اسکول سرکاری تھا لیکن پھر بھی اخراجات تو تھے جنہیں وہ خود ہی پورا کرتا تھا۔ اس کی محنت تھی اس نے بورڈ میں پہلی پوزیشن لی تھی۔ تب اس کے والد کو جب لوگ مبارکباد دیتے اور سعید کی تعریف کرتے تو اسے پتا چلا کہ اس کا بیٹا ہی اس کے دن بدل سکتا ہے۔ تب پہلی بار اس کے باپ نے اس کی تعلیم کی اہمیت کو سمجھا اور اسے کہا کہ جہاں تک ہو سکا وہ اپنے بیٹے کی تعلیم کے لیے ہر کوشش کرے گا۔ اب گھر میں باقی بہن بھائیوں کو سعید کی مثال دی جاتی۔ یہیں سے سعید ایک مغرور شخص ہو گیا۔ اکثر بہت محنت کے بعد جب لوگ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ بہت کمال کے انسان ہیں، تبھی وقت ہوتا ہے یا عاجزی آ جاتی ہے یا غرور۔ میرے والد بتاتے ہیں اس وقت سے میں سمجھنے لگا تھا کہ میں تو ان جیسا ہوں نہیں، مجھے بہت آگے جانا ہے، بہت ترقی کرنی ہے۔ تبھی اسی سروس اسٹیشن کا مالک جس کا گاڑیوں کا شو روم بھی تھا، اس نے سعید سے کہا کہ وہ اس کے ساتھ لاہور چلے اور وہیں اپنی تعلیم جاری رکھے۔ سعید نے اپنے والدین کو بتایا کہ وہ لاہور جا رہا ہے اور ان کے منع کرنے کے باوجود اس نے گھر چھوڑ دیا اور لاہور آ گیا۔ یہیں اپنی تعلیم جاری رکھی اور شام کو اس شو روم پر بیٹھنے لگا۔ اس شو روم کے مالک کو ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جو اس کے کاروبار کی نگرانی کر سکے اور یہ کام سعید اچھے سے کر سکتا تھا۔ سعید نے گھر جانا کم کر دیا، اب چھٹیوں میں بھی کبھی جاتا، 2-4 دن بعد ہی وہاں سے آ جاتا۔ اس کے لیے اس چھوٹے سے گھر میں یہاں بل نہ دینے کی وجہ سے گھر کی بجلی تک نہیں تھی اور کھانے کو اچھا کھانا میسر نہ تھا۔ وہ اب عادی تھا اچھا کھانا کھانے کا، اس کا کھانا شو روم کے مالک کے گھر سے آتا تھا۔ اسے اب عادت نہیں تھی ایسا کھانے کی جو اس کی ماں پکاتی تھی، اس لیے وہ 2-4 دن بعد ہی واپسی کی راہ لیتا۔ اس کی ماں اسے کہتی کہ اسے اس کی یاد آتی ہے، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، پتہ نہیں جب اگلی بار تم آؤ تو میں زندہ بھی ہوں گی یا نہیں۔ وہ ہنس کر کہتا کہ کچھ نہیں ہوگا، دوسرے بیٹے تو ہیں نا آپ کے، وہ خیال رکھتے تو ہیں۔ اس وقت سعید کو بھی نہیں پتا تھا بچے جتنے بھی ہوں ہر بچے کی اپنی جگہ ہوتی ہے ماں کی نظر میں، اور یہ بات تب سمجھ آتی ہے جب خود والدین بن جائیں، اور تب بہت سو کے والدین وہ دیکھنے کے لیے ہوتے نہیں۔ اس بار سعید واپس گیا تو اس کے شو روم کے مالک نے اسے دبئی بھیج دیا۔ وہاں انہوں نے اپنا کاروبار شروع کیا تھا جس کے لیے کسی قابل اعتماد شخص کی ضرورت تھی اور اس کے لیے سعید ہی بہترین تھا۔ سعید دبئی چلا گیا،
वहाँ कारोबार से बहुत मुनाफा हुआ और सईद का तजुर्बा भी बढ़ चुका था। इन्हीं दिनों उसे पता चला कि शोरूम के मालिक की तबीयत खराब है और उसे वापस बुलवाया है। वो वापस आया तो उसे पता चला कि उनकी बीमारी आखिरी स्टेज पर थी और वो अपनी इकलौती बेटी की शादी के लिए बहुत परेशान थे। सईद इनके साथ ही अस्पताल में रहा। वो सईद से पहले भी मुतासिर थे और अब तो इस शख्स को अपनी बेटी की जिम्मेदारी के लिए भी सईद ही नजर आया। इसलिए मरने से पहले वो सारा कारोबार अपनी बेटी सईद के नाम कर गया और अपनी बेटी की शादी सईद से कर दी, जो एक कॉलेज में लेक्चरर भी थी। सईद किस्मत के बदल जाने पर हैरान था। एक पढ़ी लिखी खूबसूरत बीवी और लाखों का कारोबार उससे मिल गया। इसके दिन बदल गए थे। सईद की बीवी बहुत समझदार और नेक औरत थी, बहुत नरम दिल। उसने महसूस किया कि उसका शौहर सिर्फ दो दो चार करने में ही लगा हुआ है। उसे सिर्फ दिन रात पैसे ही ज्यादा करने की फिक्र रहती है। उसने कभी अपने शौहर के मुंह से अपनी फैमिली के लिए कभी कुछ नहीं सुना। ना कभी उसके शौहर ने उसे कहा कि चलो तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ। एक दिन उसने कहा कि मुझे आपकी फैमिली से मिलना है, तो सईद ने हैरानी से अपनी बीवी को देखा और कहा कि बहुएं तो ससुराल से दूर रहने के मंसूबे बनाती हैं और तुम्हें उनसे मिलने का शौक है। तो मेरी माँ कहती हैं उन्होंने उस वक्त मेरे वालिद से कहा था, जिन बीवियों को शौहर से मोहब्बत हो वो उनके रिश्तों को भी अजीज रखती हैं। सईद अपनी बीवी के कहने पर उसे अपने घर ले गया। यहाँ जाकर उसे पता चला कि उसके भाई अपने बीवी बच्चों के साथ अपनी अपनी जिंदगी की गाड़ी घसीट रहे थे और उसके वालिदैन बीमार रहते थे। एक बहन की शादी कर दी थी और एक तलाक के बाद घर बैठी थी। इस दिन मेरी वालदा कहती हैं, मैंने फैसला किया कि मैं अपने शौहर की गलतियों को ठीक करूंगी, जिसने अपना सोचा था और अपने रिश्तों को तन्हा छोड़ दिया था। उस दिन जब वो लोग वापस आए तो अकेले नहीं थे। मेरी वालदा ने मेरे दादा दादी और मेरी पुप्पो को साथ लाने का फैसला कर लिया था और मेरे वालिद से एक अच्छी रकम उनके दूसरे भाइयों को दिलवाई ताकि वो लोग अपनी जिंदगी को थोड़ा बेहतर तरीके से गुजार सकें। मेरे अब्बा कहते हैं जब तुम्हारी माँ ने मेरे रिश्तों के लिए मुझसे ये सब करवाया तब पता चला सईद फारूक की तुम जीत के भी हार गए हो। सब कुछ था लेकिन कुछ भी नहीं था तुम्हारे पास। मुझे मेरी बीवी ने याद दिलाया कि जो आपका है उस पे आपके अपनों का हक है और मैं तो इन सब से भागता रहा था। लेकिन अब जब वापस आता और अपने घर में अपने वालिदैन को इतनी अच्छी हालत में देखता तो दिल अजीब सा सुकून महसूस करता। उनके अच्छे इलाज और अच्छी खुराक और देखभाल का नतीजा था मेरे वालिदैन अब सेहतमंद थे। उनकी दुआओं का नतीजा था वो अब बाप बनने वाला था। और फिर एक दिन जब उनकी गोद में डॉक्टर ने एक बच्ची को दिया और कहा कि आपकी मिसेस अब कभी माँ नहीं बन सकेंगी, तो मेरे वालिद कहते हैं मैंने तुम्हें ही बेटा मान लिया। मेरी वालदा कहती हैं बच्चे बीमार होते रहते हैं, लेकिन जब कभी तुम्हें कुछ होता तो तुम्हारे अब्बा सारी रात तुम्हें गोद में लिए बैठे रहते, अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाते। तब शायद उन्हें पता चला था कि औलाद का दुख क्या होता है। उन्हीं दिनों मेरे दादा की तबीयत खराब रहने लगी और मेरी माँ कहती हैं तब मैंने जिंदगी में पहली बार अपने शौहर को रोते देखा था। वो अपने बाप के लिए रोते थे, दुआएं करते थे कि उन्हें कुछ ना हो, लेकिन उनका वक्त ही इतना था। कई दिन अस्पताल रहने के बाद एक दिन वो हमेशा के लिए चले गए। ये सदमा मेरे वालिद के लिए इतना बड़ा था कि वो टूट चुके थे और उनके दूसरे दोनों भाई आते रहे, फिर इन लोगों ने भी आना छोड़ दिया। लेकिन मेरी वालदा बाकायदगी से उनका और उनके बच्चों का पता करती, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो भिजवाती रहती। मैं बड़ी हुई तो यही देखा कि मेरे वालिद मेरे मामले में इतने हसास थे कि मुझे ज़रा सा कुछ हो जाता तो उनकी जान पर बन जाती। मैं पढ़ाई में बिल्कुल अपने बाबा जैसी थी। मैंने खुद को तालीम में इतना मसरूफ़ रखा था कि मुझे और कुछ होश नहीं था। इन्हीं दिनों मुझे पता चला कि मेरी पुप्पो जो हमारे साथ रहती थी उनका एक बहुत अच्छा रिश्ता आया था और मेरी पुप्पो मुसलसल इस रिश्ते से इनकार कर रही थी। दादी उन्हें समझा कर थक गई थी, लेकिन वो दूसरी शादी करना नहीं चाहती थी। मेरी माँ ने मेरी पुप्पो से कहा वो खुद शाम को इन लोगों के घर जाएंगी और देखेंगी कैसे लोग हैं, अगर उन्हें सब ठीक लगा तो वो हाँ कर देंगी। मेरी पुप्पो ने कहा कि वो फिर से किसी पर भरोसा करके फिर से जलील नहीं होना चाहती और बहुत देर तक रोती रही। आज मुझे जब याद आता है तो महसूस होता वाकई मेरी पुप्पो के लिए वो फैसला कितना मुश्किल था। आपका एतमाद टूट जाए तो आप किसी पर जल्दी भरोसा कर नहीं सकते। वो लोग बज़ाहिर बहुत अच्छे थे। बाबा लोग इस रिश्ते से मुतमईन नजर आते थे जिससे पुप्पो की शादी हो रही थी। वो भी पहले से शादीशुदा था और एक बेटा भी था। इसकी बीवी फोत हो गई थी और किसी सरकारी स्कूल में उस्ताद था। पढ़ा लिखा शख्स था, छोटी सी फैमिली थी।
दादी भी इस रिश्ते से मुतमईन थी और उन्होंने पुप्पो को राजी किया। इन्हीं दिनों घर में कई दिन तक इसी मौजू पर बात होती रही। मैंने पुप्पो को अपने कमरे में रोते देखा। वो खुश नहीं थी। मैंने पूछा कि क्या आप नहीं चाहती कि आपका घर बस जाए? तो कहने लगी, घर वही होता है जो एक बार बस जाए, दोबारा तो पहले घर के ना बसने के ताने ही सुनने हैं। पुप्पो की एक न चली और एक शाम सादगी से उनका निकाह कर दिया गया। वो हमारे घर से रुखसत होकर चली गई। इस दिन मुझे लगा था कि जब मुझ पर यह वक्त आया तो मेरे वालिद तो शायद बर्दाश्त ही न कर सकें। मुझसे मेरे बाप की अटैचमेंट ही इस कदर थी कि लोग हम बाप बेटी की मोहब्बत पर रश करते थे। लेकिन किसी ने सच ही कहा है, जो घर के लाडले होते हैं वही ज़्यादा ठोकरें खाते हैं। एफएससी में अच्छे नंबर थे मेरे, इसलिए अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला हो गया। मैं बहुत खुश थी। यूनी में मेरी दोस्ती शैला से हुई, जो बहुत अच्छी लड़की थी। इसके वालिदैन की तलाक हो गई थी और वो अपनी माँ के साथ लाहौर में ही रहती थी। इससे मैंने पर्दे और ज़िंदगी के बहुत से मामलात को सीखा जिन पर पहले मैंने कभी सोचा नहीं था। एक दिन मैं बाबा का इंतज़ार कर रही थी जब मुझे उनकी कॉल आई। वो कुछ मसरूफ़ हैं, देर हो जाएगी। इस दिन मैं अपनी सहेली के साथ उसके घर गई। उसने कहा उसकी वालदा मुझे घर तक पहुंचा देंगी। उनके घर हम पैदल ही आ गए। वो यूनी से नज़दीक पड़ता था। आगे का सफ़र रिक्शे में करना था, इसलिए मैं अकेले जाना नहीं चाह रही थी। इसलिए मेरी सहेली ने कहा कि मेरी वालदा तुम्हारे साथ चली जाएंगे। इनके घर गए तो पता चला इसकी वालदा घर पर नहीं है, कहीं काम से गई हैं। मैं बहुत परेशान थी। तब शैला ने कहा कि तुम कुछ देर हमारे घर पर रुक जाओ और अपने वालिद से कहो तुम्हें यहाँ से ले जाएं। मैंने बाबा को कॉल करके एड्रेस बता दिया। वो छोटा सा घर था, लेकिन शैला ने बताया उसकी वालदा को बहुत शौक है पौधे लगाने का। छोटे से सहन में भी कई फूल पौधे और सब्जियां बता रही थी कि लगाने वाले ने कितनी मेहनत की थी। मैं उन्हें देखने में मगन थी जब बाहर से एक लड़का अंदर आया। मुझे देखते ही वहीं रुक गया। तभी शैला चाय ले आई। उसने उस लड़के को देखा तो बोली, साद आ जाओ, वहाँ क्यों खड़े हो? शैला ने बताया कि वो मेरा कज़न है और हमारी ही यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप पर पढ़ रहा है। वो भी वहाँ बैठ गया। शैला और वो बातें करते रहे और मैं वक्त देखती रही। जब मेरे वालिद आए मैं उनके साथ आ गई, लेकिन मुझे नहीं पता था उस दिन किस्मत मुझे साथ के सामने क्यों ले गई थी। बाबा को बहुत दिन से परेशान देख रही थी। मुझे लगा था शायद दादी की वजह से परेशान है। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। लेकिन इससे पहले हम लोग बाबा से कुछ पूछते, मेरी पुप्पो के मरने की खबर पहुंच गई। यकीन नहीं आ रहा था कि कैसे हो गया था। ये खबर सुनकर बहुत देर तक हमें से किसी को यकीन नहीं आया। जब हम लोग वहां पहुंचे तो क़यामत का मंजर था। कुछ दिन पहले जिसे बहुत खुश देखा था और कितनी खुशी से रुखसत किया था, वो आंखें बंद किए पड़ी थी। हम सबकी चीखें भी उसे उठा नहीं सकें। और अभी एक क़यामत से गुजरे नहीं थे कि दूसरी आ गई। जवान बेटी की मौत का अचानक सदमा मेरी दादी बर्दाश्त न कर सकें और एक दिन ही माँ बेटी का जनाजा उठा था। ये सदमा मेरे वालिद की कमर तोड़ गया। सारे घर पर सोग तारी था। बाबा ने खाना पीना तक छोड़ दिया। उनकी सेहत बुरी तरह मुतासिर हो गई थी। एक दिन हमें पता चला कि पुप्पो की इंश्योरेंस करवाई गई थी 50 लाख की, लेकिन ये बात हम लोगों के इल्म में नहीं थी। और अब इनके मरने के बाद ये रकम उनके शौहर को मिल गई। हम सब हैरान थे कि पुप्पो को इसकी क्या ज़रूरत पड़ी थी और ये कब हुआ था। लेकिन हमें शक हो गया था कि पुप्पो की मौत कोई हादसा नहीं थी। वो बिल्कुल ठीक थी। अचानक ये सब कैसे हो सकता था? बाबा ने मेरी पुप्पो के शौहर से बात की कि ये इंश्योरेंस कब करवाई गई और अगर ऐसा कुछ था तो इनकी बहन ने उन्हें कभी बताया क्यों नहीं। तो उसने कहा कि उसे आदत नहीं थी हर बात दूसरों को बताने की, और ख़ास तौर पर इस भाई को वो क्यों बताती जिसने अपनी साजिशों के लिए उसे छोड़ दिया था। बाबा घर आए तो बहुत परेशान थे। मामा से कहा कि उस शख्स ने ये बात कही मुझे। अगर मेरी बहन ने ये कहा होगा तो ही उसने ये बात की। मामा ने बहुत कहा कि जब शादी की थी वो नाराज़ थी। हो सकता है गुस्से में उसने ये बात कर दी हो, लेकिन आप ये सोचें कि वो इस वक्त ये बात कर क्यों रहा है। असल में वो हमें उलझा कर असल मामले से हमारी तवज्जो हटा देना चाहता है। बाबा बहुत कोशिश करते रहे कहीं से किसी तरह पता चले कि आखिर अचानक मौत की वजह क्या थी। मैंने इस बात का तस्करा अपनी सहेली से किया। हम लोग यूनी के लॉन में बैठे थे। जब इस मौजू पर बात हो रही थी तभी मेरी सहेली का कज़न साथ भी वहीं आ गया और बोला, अगर तुम लोग बुरा ना मनाओ तो एक बात करूं। वो शायद हमारी बात सुन चुका था। शैला ने उससे बैठने के लिए कहा तो उससे सारी बात पूछी। तब साद ने मशवरा दिया कि तुम लोग इनके घर आना जाना शुरू करो।
इस घर के मुख्तलिफ अफराद से मेल जोल रखो और देखो कि क्या सबका एक ही बयान है। वो हार्ट पेशेंट थी, और अगर ऐसा था तो ये कब से था। मैंने और शैला ने उसी इतवार ही पुप्पो के ससुराल जाने का फैसला किया। जिस दिन हम वहाँ गए, उनके घर में पुप्पो की सास और उनकी 2 नंदे थीं। हमें यूं अचानक देखकर इनका रंग उड़ गया। मैंने कहा, मैं यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा आप लोगों से मिलती चलूं। मेरी बात पे शायद उनको यकीन नहीं आया था, लेकिन मैं महसूस कर रही थी कि वो लोग हमें अचानक देखकर हैरान थे। मैंने पुप्पो की एक नंद से नंबर ले लिया। घर आने के बाद भी उससे बातचीत रखी। वो लड़की शायद खुश मिजाज थी या वाकई बातूनी थी। बहुत जल्द उसने मुझसे दोस्ती कर ली। मैं और शैला उससे अक्सर इतवार को मिलने जाते। एक दिन जब उसने हमें बुलवाया तो वो बहुत परेशान थी। उसने बताया कि उसके घर वाले यहाँ वो चाहते हैं, उसकी शादी होने नहीं दे रहे। वो बहुत रो रही थी। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा कि वो इसके बड़े हैं तो इसके लिए बेहतरीन ही सोचेंगे, लेकिन वो बाज़िद थी कि ये लोग किसी का अच्छा सोच नहीं सकते। मैंने जब पूछा कि किसका बुरा क्या, तो वो अचानक कुछ कहते कहते रुक गई और जल्दी से वहाँ से चली गई। मैंने शैला से कहा कि हो ना हो ये लड़की ज़रूर कुछ जानती है जिसे हम नहीं जानते। हम लोगों ने इस लड़की का पीछा न छोड़ा, उसे यही महसूस करवाया कि इस वक्त हमसे ज़्यादा उसका हमदर्द कोई नहीं और हम उसके साथ हैं। एक रात उसका फ़ोन आया, उसने मरने का फ़ैसला कर लिया। मैंने हैरानी से फ़ोन को देखा, यहाँ रात के 3 बज रहे थे। मैंने उससे कहा कि वो अपने साथ कुछ बुरा न करे, हम लोग सुबह उसके लिए कुछ सोचते हैं। वो मान गई थी और अगले दिन शैला और साथ मेरी बताई जगह पर उससे मिलने पहुंच गए। यहाँ मैं भी पहले से मौजूद थी। जब हमें वो एक लड़के के साथ आती दिखाई दी, उसने कहा कि उसके घर वालों ने उसकी शादी करने का फैसला कर लिया है और 2 दिन बाद उसका निकाह कर रहे हैं। जबकि वो घर पे सबको बता चुकी है वो किसी को पसंद करती है, लेकिन वो लोग मान नहीं रहे। शैला ने कहा वो हमें आज के दिन का वक्त दे दे, हम लोग इसका साथ देंगे, इसके घर वालों को मनाएंगे। वो लड़की हमारी बातों में आ गई। वो लड़का साद के साथ बातें करता रहा। बाद में साद ने हमें बताया कि लड़का सिर्फ लड़की के हिस्से में जो 5 मरले प्लॉट है उसकी वजह से उससे शादी कर रहा है। इसके घर वाले उसे काम करने का कहते हैं और वो लड़का काम करके राजी नहीं। इसकी भाभियां उसे ताने देती हैं और उनके शौहर कमाते हैं और ये वेला, इसलिए यहाँ सबसे जान छुड़वाने के लिए वो इस लड़की से शादी करके अमीर होने के चक्कर में है। हमें बहुत अफसोस भी हुआ कि ये लड़की बेचारी गलत लड़के का इंतखाब कर चुकी है। दूसरे दिन मैं और शैला उसके घर गए और बातों बातों में इसके वालदा से कहा कि एक बार अपनी बेटी की मर्जी भी जान ले। तो वो औरत उल्टा हमसे लड़ने लगी कि तुम यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली लड़कियां जो लड़कों के साथ पढ़ती हो, तुम लोगों को तो वालिदैन ने आज़ादी दे रखी है, तुम लोग तो शादी भी वहीं करोगी जहाँ चाहोगी, लेकिन हम जैसे लोग बेटियों को आज़ादी नहीं देते। तब मैंने सोचा अगर ये औरत कल अपनी बेटी को किसी लड़के के साथ यूं हाथों में हाथ डाले देख लेती तो इसे पता चलता कि आज़ादी किसे कहते हैं। मेरा दिल तो चाहा कि इस औरत को ठीक ठाक सुना दूं, लेकिन मैं चुप रही। हमारा मकसद कुछ और था। और फिर जब वो औरत हम पे गुस्सा होने लगी, हम ही उसकी बेटी को बिगाड़ रहे हैं। जब से उसकी दोस्ती हमसे हुई है, उनकी बेटी उनकी नाफरमानी करती है। शैला ने मुझे कहा कि चलो यहाँ से चलते हैं। जब वो लड़की अपनी माँ से लड़ने लगी कि वो इसकी दोस्तों की इंसल्ट कर रही हैं, और तभी मौका देकर शैला ने उसे कहा कि इसकी वजह से हमारी इतनी बेइज्जती हुई। मैं शैला की एक्टिंग पर हैरान रह गई, जिसने रोने जैसी सूरत बना रखी थी। वो माँ बेटी लड़ने लगी। जब उनकी माँ ने उसे थप्पड़ मार दिया और कहा कि इससे अच्छा था तू पैदा होते ही मर जाती, तब इस लड़की ने जो कहा उसे सुनकर मैं और शैला हैरान रह गए। जिस मकसद के लिए हम लोग इतने दिनों से इस लड़की को बर्दाश्त कर रहे थे, वो मौका आ गया था। उसने कहा जो दूसरों की बेटियों को मारकर इनके पैसों पर ऐश करते हैं, उनकी बेटियां भी सुकून से कैसे रह सकती हैं। अपनी बेटी से ये सुनकर वो औरत उसे कमरे की तरफ घसीटने लगी। मैंने और शैला ने उसे छिड़वाने की कोशिश की, लेकिन वो औरत मुसलसल अपनी बेटी को कोस रही थी, उसे बोलने से मना कर रही थी। जब इस लड़की ने कहा अनीता, इन लोगों ने तुम्हारी पुप्पो को मारा है ताकि इनकी इंश्योरेंस से मिलने वाली रकम पे ऐश कर सकें। इस औरत ने अपनी बेटी को कमरे में बंद कर दिया और हमें वहां से निकल जाने का कहा। शैला ने कब साथ को सारी बात बता दी थी, मुझे नहीं पता था। मेरे सामने तो अपनी हंसती मुस्कुराती पुप्पो का चेहरा था, जो मुझे कहानियां सुनाती और कभी मेरे बालों की पोनियां बनाती, कभी मामा की डांट से बचाने के लिए मेरी गलती को भी अपने सर ले लेती। मेरे सामने तो वो चेहरा था जब वो रोती रही कि उसे शादी नहीं करनी। जब हम लोग वहां से निकले तो साथ पहुंच गया था। उसने मुझे शायद तसल्ली दी थी, लेकिन मैं कुछ सुन नहीं रही थी।
शैला, लोगों ने मुझे घर छोड़ा और बाहर से ही चले गए। मुझे नहीं पता मैं कैसे कमरे तक पहुंची, जबकि मैं जानती थी कि यकीनन मेरी पुप्पो की मौत सोचा समझा मंसूबा थी। लेकिन उस दिन मैं फिर से वही दर्द महसूस कर रही थी जब मैंने पुप्पो को आखिरी बार देखा था, जो वो हमेशा के लिए छोड़ गई थी। बाबा को सब कुछ बताया तो उन्होंने पुप्पो के शौहर पर उनको मारने के इल्जाम में पर्चा करवा दिया। बाबा अपनी बहन के मुजरमों को माफ़ नहीं कर सके थे। उन्होंने रात दिन एक कर दिया और फिर ये साबित हो गया था कि मेरी पुप्पो को वाकई उनके शौहर ने सोची समझी साजिश के तहत मारा था और लालच 50 लाख की इंश्योरेंस थी जो इसी साजिश का हिस्सा थी। इसीलिए करवाई गई थी ताकि उनके मरने के बाद वो पैसा हासिल कर सकें। बाबा उस दिन सुकून से बैठे थे जिस दिन पुप्पो के मुजरिम को सजा हो गई थी। मैं, शैला और साद की शुक्रगुजार थी। इन लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया था। इन्हीं दिनों मैंने महसूस किया साद मुझे कुछ कहना चाहता है, लेकिन कहते कहते चुप कर जाता। एक दिन शैला ने मुझे बताया कि अनीता, मेरा कज़न तुमसे मोहब्बत करने लगा है और तुमसे शादी करना चाहता है। मैंने कहा कि यह फैसला मेरे वालिदैन ही करेंगे। मैंने उस वक्त तक शादी के बारे में सोचा भी नहीं था। साद ने अपनी वालदा को हमारे घर भेजा, लेकिन मेरे वालिद ने कहा कि वो ये रिश्ता नहीं कर सकते। वो कहीं और मेरा रिश्ता तय कर चुके हैं। मैं और मामा हैरान थे कि इस बारे में हमें कुछ नहीं बताया क्या। साद की माँ मायूस होकर लौट चुकी थी। इस रात मुझे बाबा ने कमरे में बुलवाया और कहा कि तुम मेरी इकलौती औलाद हो, हमेशा आसाइशों में ज़िंदगी गुजारी है। साद एक गरीब लड़का है, तुम कभी भी उसके साथ अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार सकोगी। और उस दिन मुझे पता चला कभी कभी अच्छे भले तजर्बाकार लोग गलत फैसला कर लेते हैं। मेरी तालीम मुकम्मल हो गई। मैंने यूनी जाना छोड़ दिया। साद से बातचीत पहले भी कम थी। मैंने इस वक्त उसके मुतालिक ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था, इसलिए इस वक्त में साद की इस खामोशी को समझ नहीं सकी। जो पहले बहुत खुश रहता था लेकिन अब बहुत चुप चुप रहने लगा। और फिर वो दिन आया जब सारे स्टूडेंट्स एक दूसरे को आखिरी बार खुदा हाफिज कह रहे थे। उनकी डिग्री मुकम्मल हो गई थी। मेरी तरह उनका भी यूनी में आखिरी दिन था। जब मैंने साद को देखा जो मुझे ही देख रहा था, जब मैंने पूछा क्या बात है, तो कहने लगा, मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा किसी काबिल बनकर तुम्हें मिलूँ। मैं जब किसी काबिल नहीं हूँ तो इस वक्त मैं खुद को इस काबिल समझ नहीं रहा, लेकिन याद रखना जब किसी काबिल हो गया तब भी मेरी ज़िंदगी में सिर्फ तुम ही इस काबिल होगी मेरे साथ चल सको। वो चला गया था और मैं हैरान थी कि इतनी अहमियत मेरी उसकी ज़िंदगी में क्यों है, लेकिन कुछ बातों के जवाब वक्त ही दे सकता है और वो हमारा वक्त नहीं था। बाबा ने मेरा रिश्ता तय कर दिया और मैं शादी होके कराची आ गई। मेरा शौहर बहुत अमीर शख्स था और यही देखकर शायद बाबा ने भी सोचा था कि ये रिश्ता मेरे लिए ठीक है। कुछ अरसे तक वो मेरे साथ बिल्कुल ठीक रहा, लेकिन उसका रवैया बदलने लगा। मैंने पूछा तो उसने कहा उसे कारोबार में नुकसान हो गया है। मैं उसके जितना भी ख्याल रखती, खुश रखने की कोशिश करती, लेकिन उसका रवैया मेरे साथ दिन ब दिन बुरा होता जा रहा था। मेरे शौहर ने गुस्से में आकर मुझे तलाक दे दी, लेकिन जब एक अमीर आदमी ने मेरे लिए रिश्ता भेजा तो शौहर शर्मिंदा होकर माफिया मांगने लगा और बोला, तुम वापस मुझसे शादी कर लो, लेकिन उसके लिए हलाला करवाना ज़रूरी था। पर शौहर को खौफ था कि जो भी मुझसे शादी करेगा फिर वो तलाक नहीं देगा, इसलिए एक दिन वो मुझे हलाले की खातिर ऐसी जगह लेकर गया जहाँ पर तो सिर्फ तवाइफें थीं। मैंने परेशान होकर उससे पूछा वो मुझे यहाँ क्यों ले आया है, तो उसने कहा यही वाहिद हल है जिससे हम दोबारा एक साथ ज़िंदगी गुजार सकेंगे। मैंने कहा मुझे यहाँ नहीं रहना, लेकिन वो मुझे वहाँ मौजूद एक औरत के हवाले करके निकल गया। मैं रोती रही, उसके पीछे दौड़ी, लेकिन उसने मेरी आवाज़ न सुनी। पीछे पलट कर ना देखा। मैं पागल थी। वो अगर मुझसे मोहब्बत करता तो जैसे भी हालात होते मुझे तलाक ना देता और ना ही मुझे यहाँ छोड़ जाता। उस रात मुझे पता चला कि मेरा शौहर लड़कियाँ स्मगल करता था और उसके पास जितना पैसा है सब इसी तरह से हासिल किया गया। अब उसे मज़ीद पैसे की ज़रूरत थी और ये कोठे वाले भी उसे जलील कर रहे थे कि वो शायद उनसे अलग अपना कारोबार कर रहा था। उन्हें यकीन दिलाने की खातिर वो अपनी ही बीवी को तलाक दे के यहाँ छोड़ गया और जानबूझकर मेरी नज़र में अच्छा बनने के लिए हलाले की बात की थी ताकि मुझे उस पर शक ना हो, और ये कहा कि कल किसी से निकाह कर देंगे और फिर कुछ दिन बाद तलाक हो जाएगी तो मैं फिर से उसके साथ ज़िंदगी गुजार सकूंगी। उस रात मुझे कुछ अरसे पहले की एक कॉल याद आई जब मुझे किसी ने कहा था तुम्हारा शौहर स्मगलर है और लड़कियों को फ़रोख्त करने का कारोबार करता है, अगर तुम हमारा साथ दो तो हम उसे अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। इस पे हाथ डालना आसान नहीं था
کیونکہ اس کے پیچھے بہت بااثر لوگ تھے، لیکن میں نے اس شخص کو اپنا گھر برباد کرنے والا سمجھا۔ کاش میں یقین کر لیتی، شاید میری وجہ سے بہت سی لڑکیاں اس شیطان کے مکر و فریب سے بچ جاتیں۔ اگلے دن میرا نکاح اسی امیر شخص سے کر دیا گیا جو چند دن بعد مجھے طلاق دے دیتا اور میں پھر سے اسی شیطان کی بیوی بن جاتی۔ میں نے بہت کوشش کی وہاں سے نکلنے کی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہاں سے کیسے نکلوں۔ جس نے مجھ سے نکاح کیا تھا میں نے اسے نہیں دیکھا تھا، مجھے تو چند کاغذات میں سائن کرنے کو کہا گیا۔ اس عورت نے بتایا کہ وہ شخص بہت امیر ہے اور وہ مان گیا ہے کچھ دن بعد خود ہی تمہیں چھوڑ دے گا، اسی شرط پر تمہارے شوہر نے اسے حلالے کے لیے ٹھیک سمجھا۔ لیکن وہ جو کوئی بھی تھا مجھے اس کوٹھے پر چھوڑ گیا تھا۔ میری زندگی عجیب دلدل میں پھنس چکی تھی۔ ایک مصیبت سے نکل کر میں دوسری مصیبت میں پھنس گئی تھی۔ وہ رات میں نے روتے گزاری۔ اذان سے کچھ پہلے مجھے باہر شور محسوس ہوا، جیسے بہت سے لوگ بھاگ دوڑ رہے تھے۔ تبھی اچانک اس کمرے کا دروازہ کھلا اور سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر میں کتنی دیر تک پہچان نہ سکی۔ وہ میری طرف بڑھا اور کہا، پریشان مت ہو، میں آ گیا ہوں۔ بہت سالوں بعد وہ آواز سنی تھی، لیکن میں پہچان گئی تھی وہ ساتھ تھا جو پولیس کی وردی میں میرے سامنے تھا، جو ASP تھا اور اسی کیس کو ہینڈل کر رہا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس بار بھی وہ میرا نہیں تھا، میں تو پھر سے برباد ہو چکی تھی۔ اس نے ان لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ وہ شخص بھی پکڑا گیا جس نے میرے سمیت بہت سی لڑکیوں کی زندگی برباد کی تھی۔ ساتھ نے مجھے گھر چھوڑا اور باہر سے ہی چلا گیا تھا۔ میں والدین سے کیا کہتی کہ کیا کچھ میں دیکھ چکی تھی ان دنوں میں، لیکن میری حالت دیکھ کر وہ پریشان ہو گئے۔ شام کو شیلا بھی آ گئی۔ اس کی شادی اسی شہر میں ہوئی تھی۔ اسے شاید سعد نے ہی بھیجا تھا۔ اس نے بتایا کہ سعد نے بہت محنت کی تھی اس مقام تک پہنچنے کے لیے۔ وہ ایک ایماندار پولیس آفیسر ہے اور کچھ دن پہلے اسی کیس کی وجہ سے اس نے اس شہر میں پوسٹنگ کروائی تھی۔ شیلا روز کچھ دیر میرے ساتھ وقت گزارتی۔ سچے اور مخلص دوست بھی اللہ کی نعمت ہوتے ہیں، لیکن ان دنوں میں بہت ڈری ہوئی تھی۔ ہر وقت مجھے دھڑکا لگا رہتا کہ جس امیر شخص سے میری شادی ہوئی تھی وہ مجھے لینے آ جائے گا۔ ایک دن میں نے اس بات کا ذکر شیلا سے کیا تو اس نے بات ٹال دی اور کہا کہ تم اس بارے میں نہ سوچو، اور کہا کہ اگر تم واقعی اس معاملے سے نکلنا چاہتی ہو تو سعد سے بات کرو، وہ تمہارے لیے ضرور کوئی حل نکالے گا۔ میں نے سعد سے بات کی۔ مجھے اس شخص سے جان چھڑوانی ہے۔ میں دوبارہ سے کسی شخص پر بھروسہ نہیں کر سکتی اور نہ ہی مجھے دوبارہ شادی جیسی مصیبت مول لینی ہے۔ سعد نے کہا، کیا یہ بہتر نہیں تم ماضی کو بھول کر زندگی کی طرف لوٹاؤ؟ میں سمجھ گئی تھی سعد اس معاملے میں میری مدد نہیں کر سکتا، لیکن آنے والے دن میرے لیے کیا کرنے والے تھے میں نہیں جانتی تھی۔ ایک دن میری والدہ میرے پاس آئیں اور کہا کہ تمہارا شوہر تمہیں لینے آیا ہے۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسی دن سے تو میں ڈرتی تھی۔ میری آنکھیں برسنے لگیں اور مجھے لگ رہا تھا میں کھڑے کھڑے ہی گر جاؤں گی۔ بہت عرصے بعد تو ماں باپ کے گھر میں سکون محسوس کر رہی تھی۔ اب یہ نئی مصیبت پھر سے میرے سر پہ تھی۔ جب میری والدہ نے مجھے سینے سے لگایا اور کہا، بیٹی وقت بہت کچھ سکھا دیتا ہے، لیکن ہم بد نصیب وقت پر سمجھ نہیں سکتے، یا یہ کہہ لو تقدیر میں لکھا ہو کر ہی رہتا ہے، اور کبھی کبھی کسی کی لگن سچی ہوتی ہے اور بہت کچھ لوٹ کر پھر سے اسی کا ہو جاتا ہے جس کا وقت نہیں تھا۔ اس کا وقت آ ضرور جاتا ہے۔ میں نے نا سمجھی سے ماں کو دیکھا۔ ماں نے کہا، چلو ساتھ میرے تمہیں دکھاؤں، جسے تمہارے باپ نے تمہارے قابل نہیں سمجھا تھا وہ قابل بن کر بھی تمہارا ہی ہے اور تمہیں لینے آیا ہے۔ میں جب ماں کے ساتھ کمرے سے باہر آئی تو سامنے ساتھ میرے والد سے باتوں میں مصروف تھا۔ مجھے دیکھا تو کھڑا ہو گیا۔ میں نے ماں کی طرف دیکھا۔ ماں نے کہا، یہی وہ امیر لڑکا ہے جس سے تمہاری شادی ہوئی ہے۔ یہ سب کچھ جان گیا تھا تمہیں اس مصیبت سے بچانے کے لیے اس نے ہی سب کچھ ٹھیک کیا تاکہ تمہیں اس مصیبت سے نکال سکے، اور شیلا بھی یہ بات جانتی تھی۔ سعد نے ہاتھ میری طرف بڑھایا جسے تھامنے کی بجائے میں نے اگنور کیا۔ مجھے غصہ تھا۔ میں اتنے دن سے پریشان تھی، ڈر رہی تھی کہ پتہ نہیں کون ہوگا جسے میں ایک بار پھر سے اپنی زندگی میں نہ چاہتے ہوئے بھی شامل کر چکی تھی۔ میں سعد سے کہتی رہی، مجھے اس مصیبت سے نکالو۔ وہ میری باتیں سنتا رہا لیکن مجھے بتایا تک نہیں۔ وہ میں ہی ہوں، اور جب میں نے کل اسے کہا میں خود ہی کچھ کرتی ہوں تو آج میرے سامنے تھا۔ میرے والدین نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کچھ وقت دو تاکہ اچھی طرح دھوم دھام سے اپنی بیٹی کو رخصت کریں، لیکن سعد نے کہا کہ وہ سادگی سے سب چاہتا ہے، اور پھر اسی شام میں سعد کے ساتھ آ گئی۔ سارا راستہ بھی میں خاموش رہی۔ وہی بتاتا رہا، پہلی دفعہ تمہیں دیکھا تھا تو سوچ لیا تھا سعد یہی لڑکی ہے جو تمہاری ٹکر کی ہے۔
میں نے غصے سے اسے دیکھا، لیکن میں بہت خوش بھی تھی۔ اس جیسا چاہنے والا شخص اللہ نے میری قسمت میں لکھ دیا تھا۔